I am Hemant Mittal. My teaching in machine learning. Previous topic will we discuss ML, AI, and deep learning difference. Now will we discuss ML, machine learning. Will be contains introductions, basic machine learning algorithms, machine learning applications, and machine learning algorithms in linear regression and support vector machines. Now will we discuss learning object. Define the concept of regression analysis role in supervised learning. Basically, ML is machine learning is a field of AI and deep learning. And now ML use the four types of learning: supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, and reinforcement learning. Supervised learning use the of label data work to learn the data in machine learning, and unsupervised learning data use the unlabeled data. Semi-supervised use the in labeled data, unlabeled data, and reinforcement learning use the agent of working. Now will we discuss in define the concept of regression analysis in the supervised learning, understanding the fundamental principle of linear regressions, perform the simple linear regressions, and one predict the variables, extend the linear regression to multiple prediction values, learn the quality of linear regression models, define the concept of support vector machines and their applications, classification and regression methods. Now will we discuss in definition of the machine learning. Machine learning is the subcategory of AI. AI is the subfield of world of data science. Data scientists, powerful toolkits, algorithms extract the meaningful inside the data and generate the prediction value and accuracy of the data. Basically, machine learning use the data learns in define the data, then will we predict the accuracy of the accurate data. Now will be amongst these algorithms use the support vector machines, fundamental techniques to the various data science applications. These algorithms use the uncover patterns, make predictions and solve the complex problem. Basically, basic machine learning algorithms we categorize two main types. Basically, machine learning is four categories, defines supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, and reinforcement learning. Now will be two basically very important, supervised learning and unsupervised learning. Supervised learning algorithms provide the label data set, which means the given the what input data and corresponding the correct data. The algorithms to learn the prediction of classification and regression methods on the this training data and testing data. Now will be second types of unsupervised learning. Unsupervised learning use the unlabeled data to the clustering methods. These algorithms identify the patterns and structures which within the data, such as clustering similar the data points and reduce the prediction value and accuracy of the data. Basically, machine learning is block diagrams. Now will be defines overall subfields of AI. Machine learning, deep learning basically subfields of ML, and ML and deep learning is subfield of AI. Now will be basic diagrams just like AI, artificial intelligence is subfield of AI. AI is subfield of ML and deep learning. Now will we show the diagram. AI purchase predictions and small categorized data, smart categorize the small parts of data, and machine learning approach the of supervised, unsupervised, labeled data, unlabeled data, agent working. Now deep learning is the speech recognition, robotics, different जो है applications use the deep learning process. बेसिक मशीन लर्निंग जो कैटेगरीज हैं वो किस तरह डिफाइन की गई हैं कि डेटा साइंस के अंदर जो है मशीन लर्निंग का कैसे यूज किया गया है, एआई का कैसे यूज किया गया है, देन उससे जो प्रिडिक्शंस वैल्यू अपने पास जनरेट होती है उनको कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे डेटा को ट्रेन किया जाता है,
Now first point, machine learning is a subcategory of artificial intelligence is the world of the data science. Second, data scientists with the powerful toolkit of the algorithm extract the meaningful inside the prediction value from the data. लाइक मीनिंगफुल का मतलब कि जो अपने पास जो लेवल डेटा है, लेवल डेटा से अपन को एक प्रिडिक्शन वैल्यू अपन को आइडेंटिफाई करनी है, उस मॉडल्स को किस तरह ट्रेन करके उस पर अपन को टेस्टिंग करनी है. बेसिकली मशीन लर्निंग यूज द 50% डेटा इज ट्रेनिंग डेटा एंड 50% डेटा इज टेस्टिंग डेटा. लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ डेटा है, डेटा को मैंने यहाँ पे मशीन के अंदर जो है इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स मैंने अप्लाई करी, लाइक सुपरवाइज लर्निंग की. सुपरवाइज लर्निंग यूज द लेवल डेटा, already given the input machine to input the level data, then train the prediction value and accuracy in the level data. Like second algorithms, unsupervised learning. Unsupervised learning basically use the data and define the different clusters. क्योंकि जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर जो डेटा रहता है वो अनलेबल डेटा रहता है. अनलेबल डेटा को पहले जो है मशीन को जो है ट्रेन किया जाता है, देन उसको क्लस्टर्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया जाता है. तो लाइक जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे यूज करा, लाइक सम स्मॉल एग्जांपल, स्मॉल इनपुट कैट एंड डॉग, लाइक इनपुट इन मशीन एंड कैट. कैट जैसे मान लीजिए कैट की डिफरेंट मैंने इमेजेस उसको जो है मशीन को इनपुट करी. इनपुट करने के बाद उस मशीन ने क्या किया कि इस जो कैट को है उसको ट्रेन करने के बाद इस डेटा को क्या करा, क्लस्टर्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया. सेम जो है डॉग को मशीन ने क्या करा, ट्रेन करा और क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करा. देन यहाँ पे अपन फिर जो क्लस्टर्स इसके पास जनरेट हुए हैं उसमें अपन क्या करेंगे, उस डेटा को अपन क्या करेंगे, वापस से ट्रेन करेंगे, क्योंकि जो अब डेटा है अपने पास क्या हो गया, लेवल डेटा में कन्वर्ट हो गया. फिर अपन इसकी प्रेडिक्शन वैल्यू क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. बट सुपरवाइज लर्निंग में क्या रहता है, ऑलरेडी लेवल डेटा रहता है, मशीन को उस डेटा को अपन ट्रेन करवाते हैं, ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी और जो है उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू वो जनरेट करता है. देन उसी डेटा पे अपन उस डेटा की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. इसी तरह दो मॉडल्स इसके अंदर जो है, दो प्रोसेस इसके अंदर यूज किए जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर. कुछ डेटा को अपन ट्रेन करते हैं, कुछ डेटा को अपन टेस्टिंग करते हैं. जिस डेटा को अपन ने ट्रेंड किया है उसी डेटा को अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे. इसमें लाइक रेशो अपने पास रहता है 50-50 का, 70-30, 60-40. इस तरह कुछ रेशो में अपन उस डेटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे कुछ डेटा अपने पास ट्रेंड होके आए और कुछ डेटा अपने पास क्या होके आए, टेस्टिंग होके आए. Then third point, there are several basic machine learning algorithms serve the building blocks more complex models problem. These algorithms categorize the supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning and semi-supervised learning. Some basic machine learning algorithms each categories. Next figure, like ये एक बेसिक मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं, जो टाइप्स हैं मशीन लर्निंग का, उसका एक जो है अपन यहाँ डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे. मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग. जब सुपरवाइज लर्निंग है उसमें भी अपने इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया है, क्लासिफिकेशन मेथड्स और रिग्रेशन मेथड्स. क्लासिफिकेशन मेथड्स के भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करके उस डेटा को क्या करते हैं, अपन क्लासीफाई करते हैं. सेकंड, रिग्रेशन मेथड्स में भी जो है डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करके उसको रिग्रेशंस के थ्रू अपन उस डेटा को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. सेम अपन अनसुपरवाइज में 2 टाइप्स में इसको डिफाइन किया जाता है, क्लस्टरिंग एंड डायमेंसिटी रिडक्शन. और सेम रेनफोर्समेंट लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं. सुपरवाइज में बेसिकली क्लासिफिकेशन में 2 मेथड्स, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं. क्लासिफिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंस जो फर्स्ट एल्गोरिथम्स आती है अपनी, नेव बेस थ्योरम. सेकंड है अपने पास सपोर्ट वेक्टर मशीन और थर्ड है अपने पास KNN, के नियरेस्ट नेबर. सेम रिग्रेशंस के लिए 3 एल्गोरिथम्स अपन यूज करते हैं, डिसीजन ट्री, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिक रिग्रेशन. सेम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर 2 एल्गोरिथम्स अपन यूज करेंगे, फर्स्ट क्लस्टरिंग और सेकंड डायमेंसिटी रिडक्शन.
क्लस्टरिंग में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम्स आती है अपने पास, के मींस एंड के मेथड्स। सेकंड जो एल्गोरिथम्स है उसके अंदर आता है पीसीए मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइज। थर्ड, सेकंड अपने पास फीचर सिलेक्शन एंड थर्ड अपने पास लीनियर एनालाइज। सेम रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है बेसिकली दो इवेंट्स पे वर्क करती है, एजेंट और एनवायरमेंट। एजेंट एंड एनवायरमेंट। जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर लेवल डेटा और अनलेवल डेटा दोनों पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। लेवल डेटा और अनलेवल डेटा को जो मिक्स है वो अपने पास सेमी सुपरवाइज लर्निंग के लिए अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एल्गोरिथम्स अपने पास आती है, फर्स्ट लर्निंग जो मेथड्स है वो है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो फर्स्ट एल्गोरिथम्स अपने पास आती है क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड क्या करता है, डेटा को क्लासीफाई करता है। लाइक एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास दो अपने पास दो इवेंट्स हैं, एक एक डॉग है और एक कैट है। कैट को अपन को कैटेगराइज करना है, उस पर अपन को क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है, उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू अपन को जनरेट करनी है। अब कैट और डॉग दो अपने पास दो इवेंट्स दिए हुए हैं, कैट और डॉग। दोनों इवेंट्स में इनका कलर के अकॉर्डिंग, कलर, इनकी साइज और साइज एंड थर्ड इनका दे रखा है अपने को वॉइस। वॉइस के अकॉर्डिंग अपन को क्या निकालना है, इनका प्रिडिक्शन वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट एल्गोरिथम्स आती है क्लासिफिकेशन की वो क्या आती है, नेव बेस थ्योरम। नेव बेस थ्योरम बेसिकली प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं। इसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं ए और बी, जिसके थ्रू अपन को ए इवेंट पे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी इवेंट पे ए की प्रोबेबिलिटी अपन को क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए अपन को दो इवेंट्स दिए होंगे, दोनों इवेंट्स के अंदर इनकी साइज दे रखी होगी, कलर दे रखा होगा या वॉइस दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी क्या निकालेंगे, प्रेडिक्शन वैल्यू निकालेंगे। सेम अपने पास सेकंड जो एल्गोरिथम्स आएगी वो क्या आएगी, के मींस, के नियरेस्ट नेबर, के एन एन। के एन एन में क्या करता है, नियरेस्ट जो डेटा पॉइंट्स है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है के एन एन के लिए, इक्लूडियन डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं अपन, के एन एन में क्या करते हैं, के एन एन में अपने पास दो इवेंट्स दिए होंगे, जैसे लाइक आपको दे रखा है, लाइक एक एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पे। आपको x1 और y1 आपको दिए होंगे, x1 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, y1 वैल्यू आपको दिया होगा, x2 और y2 ऑलरेडी अपन को डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं। लाइक एग्जांपल के लिए 3 और 4 आपको डेटा पॉइंट दिए हुए हैं, x2 और y2, और अपन को नियरेस्ट जो है वैल्यू अपन को आइडेंटिफाई करनी है n इक्वल टू 3। तो x1 आपको दे रखा है 2 3 3 4 5 4 3 4 2 एंड 3, ये आपको दिया हुआ है। अपन को क्या निकालनी है, इक्लूडियन डिस्टेंस निकालनी है। इस इक्लूडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपन को x2 और y2 जो गिवन डेटा पॉइंट्स है उनसे हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले अपन निकालेंगे ed1 में अपन वैल्यू रखेंगे x2 3 माइनस x1 2 प्लस y2 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे अपन ed1 निकालेंगे, ये निकलेगा अपने पास 1 प्लस 1, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 अपने पास निकलेगा। सेम अपन ed2 निकालेंगे, ed2 में अपन वैल्यू रखेंगे x2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अपने पास ed2 आ जाएगा अपने पास 0, इक्लूडियन डिस्टेंस फर्स्ट अपने पास आई है 2, सेकेंड अपने पास 0, थर्ड अपन निकालेंगे ed3। ed3 अपने पास दे रखा है 5 माइनस
3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास निकल जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 4, तो ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। उसके बाद अपन निकालेंगे ED4 इक्लूडियन डिस्टेंस 4 निकलेगी अपने पास x2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएगा 0। फाइव अपन निकालेंगे ED5, ये अपने पास निकलेगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा √2, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट 1.83 के आसपास आएगा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.83। तो अपने को जो इक्लूडियन डिस्टेंस निकालनी थी, नियरेस्ट वैल्यू अपने को दे रखी थी 3, तो 3 जो वैल्यू है इससे कम है या इसके नियरेस्ट है वो वैल्यू अपन इसको जो है काउंट करेंगे। इसके अंदर 3 नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो जो 3 डिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई होंगी। इस तरह जो है अपन इक्लूडियन डिस्टेंस क्या करते हैं, नियरेस्ट जो है डेटा पॉइंट्स इससे आइडेंटिफाई करते हैं KNN से, के नियरेस्ट नेबर। 3 जो नियरेस्ट, जैसे लाइक एग्जांपल के लिए ये जो है 5 डेटा पॉइंट्स आपको दे रखे होते हैं, कई बार आपको 10 डेटा पॉइंट्स दिए होंगे, वहां पे आपको जो है नियरेस्ट वैल्यू n=5 भी आपसे निकलवा सकता है। तो 5 से जो है अपन क्या निकालेंगे, 5 जो 10 की इक्लूडियन डिस्टेंस निकालेंगे और 5 या 5 से कम है, 5 तक या 5 से जो है 5 से कम जो वैल्यू है, 5 जो डिस्टेंस है उनको अपन आइडेंटिफाई करेंगे और नियरेस्ट डिस्टेंस अपन क्या निकालेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्या होता है अपने पास सेकंड जो एल्गोरिथम्स है, क्लासिफिकेशन मेथड के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं के नियरेस्ट नेबर। सेकंड जो है इसके अंदर आता है अपने पास सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों मेथड्स में अपन यूज करते हैं। इसके लिए सेपरेटिंग जो है यूज केस कौन कौन सी यूज किए जाते हैं, सेपरेटिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू द डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के लिए अपन सेपरेट कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए अपन रिग्रेशन मेथड के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के अंदर जो है बेसिकली एक हाइपर प्लेन अपन यूज करते हैं, जिसके थ्रू डेटा को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे अपन रिग्रेशन मेथड यूज करें या क्लासिफिकेशन का जो है मेथड्स क्या कर रहे हैं अपन यूज करें। सेकंड जो है इसकी एल्गोरिथम्स आती है के नियरेस्ट नेबर, जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में अपन यूज करते हैं। मोस्टली जो है फर्स्ट जो है मोस्टली यूज किया जाता है KNN, क्लासिफिकेशन मेथड के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग किस तरह वर्क करता है, जैसे अपने पास लेवल डेटा है उसको अपन लेवल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेवल डेटा दिया हुआ है, लेवल्स डिफरेंट आपको लेवल्स दे रखे हैं, तो उनको लेवल्स को अपन को डिफरेंट लेवल्स में अपन उसको डिवाइड करते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रेंगल है और हेक्सागोन है। तो इन डेटा को अब क्या करेगा, जो मशीन है रेक्टेंगल को जो है ट्रेन करेगी, फिर उसके बाद सर्कल्स को ट्रेन करेगी, ट्रेंगल्स को ट्रेन करेगी, देन हेक्सागोन को ट्रेन करेगी। ट्रेन करने के बाद मॉडल्स यहाँ पे प्रिपेयर होंगे, उस डेटा को क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद उस डेटा को क्या करेगी, प्रिडिक्शन करेगी। प्रिडिक्शन में जैसे मान लीजिए इसने लाइक दो जो है दो वैल्यू को प्रिडिक्शन किया है, एक ट्रेंगल को और एक सर्कल को, क्योंकि उन्हीं डेटा पे क्या किया गया, उन्हीं डेटा को ट्रेन किया गया और उसी डेटा पे क्या की गई है, टेस्टिंग की गई है। इस तरह ये जो है सुपरवाइज लर्निंग क्या करती है, वर्क करती है लेवल डेटा पे। सेकंड जो एल्गोरिथम्स आती है अपने पास, सेकंड जो लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो है अनलेवल डेटा के लिए, जो अपन अनसुपरवाइज लर्निंग अपन यूज करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर अनलेवल डेटा पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, जिसके अंदर लाइक जैसे यहाँ पे अनलेवल डेटा दिया हुआ है, बट इसमें जो है डिफाइन नहीं किया कर रखा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है या आपके पास सर्किल है या हेक्सागोन है या आपके पास ट्रेंगल है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको डेटा दिया गया है, डेटा को अपन क्या करेंगे, मशीन्स को देंगे, मशीन इसको क्या करेगी, ट्रेन करेगी। अब मशीन्स के पास कुछ डेटा ऑलरेडी से ट्रेन है,
तो वो क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देगी। जैसे जो रिजल्ट्स आएगा, जैसे यहाँ पे एक सर्किल को यानी इसने ट्रेन करा है, देन ट्रेंगल को करा है, हेक्सागन को करा है और रेक्टेंगल को करा है। तो इस तरह जो है अनलेबल डेटा को जो ट्रेन करने का जो वर्क है या टेस्टिंग के लिए अनलेबल डेटा पे वर्क किया जाता है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए अपन यूज करते हैं। इसकी जो सुपरवाइज लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स यूज की जाती है, एक रिग्रेशन मेथड्स जिसके अंदर लीनियर रिग्रेशन अपन यूज करते हैं, और एक क्लासिफिकेशन के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं वो KNN और नेव बेयस थ्योरम, दो एल्गोरिथम्स यूज की जाती है। सेकंड जो एल्गोरिथम्स यूज की जाती है लीनियर रिग्रेशंस मेथड्स जो है बेसिकली जो है प्रेडिक्शन वैल्यू, कंटिन्यूस वैल्यू जो अपने पास एक कंटिन्यूस वैल्यू के फॉर्मेट में जो अपने पास जनरेट होती है उस डेटा पे क्या करती है, वर्क करती है। इट इज द एसेंशियल द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज फॉर द predicting a continuous numerical value which it makes the part of the supervised learning. It is commonly applied the various field including the finance, science, social science, different fields के अंदर जो है बेसिकली अपन लीनियर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं। थर्ड अपने पास है लीनियर रिग्रेशन एस्टेब्लिश द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली दो जो है दो वेरिएबल्स पे वर्क करती है, एक वेरिएबल्स होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोर्थ पॉइंट है द प्राइमरी एम द मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्ट वैल्यू एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू। बेसिकली जो है इसके अंदर एक वैल्यू अपन को प्रेडिक्ट वैल्यू दी हुई होती है और एक ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई होती है, उससे अपन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं। द प्राइमरी एम द मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मेकिंग इट यूजफुल टूल्स फॉर टास्क सच एज प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस, सेल्स फिगर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। बेसिकली जो लीनियर रिग्रेशन मेथड है वो हाउस के लिए या सेल्स मार्केटिंग में मोस्टली इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपन यूज कर सकते हैं। कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, मोस्टली जो है यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के अंदर, जैसे सर्च इंजन के अंदर, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम फिल्टर। स्पैम मतलब जैसे जो भी अपने पास मेल्स वगैरह हैं स्पैम में, उसको फिल्टर करने के लिए बेसिकली अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में कन्वर्ट द स्पोकन लैंग्वेज इनटू द टेक्स्ट। कोई भी लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या टेक्स्ट को जो है लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली अपन स्पीच जो है मशीन लर्निंग जो एप्लीकेशन है उसको अपन यूज कर सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट डिवाइस एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन है, ऑटो करेक्ट प्रेडिक्शन टेक्स्ट है, वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट में जो है इंटेलिजेंस वॉइस टेक्स्ट को कमांड करने के लिए बेसिकली जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। थर्ड है अपने पास फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथम्स ट्रेडिंग। टुडे जो है बेसिकली साइबर क्राइम के अंदर जो है आज टुडे बेसिकली ज़्यादातर जो है साइबर क्राइम आज हो रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है कई बार पैसा अपना जो है मनी ट्रांसफर हो जाती है, तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड हेल्थ केयर के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर बेसिकली कैंसर डिटेक्शंस में, डायबिटीज़ के डिटेक्शंस में, डिफरेंट जो है डिसीजेस हैं उसके लिए अपन जो है मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं। बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर मेडिकल में, ड्रग्स में और डिफरेंट मेडिसिन्स को जो है ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली अपन जो है मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स हैं उनका क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस में भी यूज किया जाता है, सेल्फ ड्राइविंग के अंदर, ट्रैफिक प्रिडिक्शन के अंदर कि कितना गूगल मैप के अंदर कितना ट्रैफिक हो रहा है। कई जगह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए अपन मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स है उनका क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट के डिफेक्ट वगैरह में, प्रोडक्ट डिटेक्शंस में, प्रोडक्ट डिफेक्ट है या नहीं है उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल्स में अपन यूज कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर बेसिकली जो है डिफरेंट रिसर्च और साइंस के अंदर, डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। बेसिकली ये जो है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस का एक फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपन यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट पार्सिंग में, रिकमेंडेशन सिस्टम में, कस्टमर सर्विसेज में, डिसीजन सपोर्ट में,
इमेज के क्लासिफिकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट इमेज को क्लासीफाई करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शंस में, कंटेंट जनरेशंस में, उसके बाद कस्टमर सेगमेंटेशन, फ्रॉड डिटेक्शंस, कस्टमर मॉडलिंग में, लीड कन्वर्जन में, डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यू को प्रेडिक्शन करने के लिए, एक्यूरेसी को जनरेट करने के लिए अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट अपने पास एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, दो वैल्यू पे ये वर्क करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूले पे अपन वर्क करते हैं। y जो है यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। m अपन को जो है c कोफिशिएंट है, m अपने को स्लोप है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y, तो यहाँ पे अपन को दोनों वेरिएबल्स पे क्या निकालना है, दो वेरिएबल्स अपन को आइडेंटिफाई करने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फाइव, सबसे पहले अपन यहाँ पे m आइडेंटिफाई करेंगे। m आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अपन x बार निकालेंगे, फिर अपन y बार निकालेंगे। x बार 3 2 5 5 15 डिवाइड बाई 5, तो x बार अपने पास आएगा 3, देन 15 डिवाइड बाई 3 5, तो x y बार अपने पास आ जाएगा 3, x बार बराबर 3, बाई बार इक्वल टू 3। तो ये अपने पास आ गया। इससे अपन m आइडेंटिफाई करेंगे। m आइडेंटिफाई करने के लिए अपन निकालेंगे x1 y1, अब निकालेंगे अपन x माइनस x बार, देन y माइनस y बार। तो x1 अपने को दिया हुआ है 2 3 4 5 2। देन 3, तो ये अपने को दे रखा है x1, y1 अपने को दिया 1 2 3 4 5। अब अपन निकालेंगे x माइनस एक्स बार। एक्स बार अपने पास 3 है, तो 2 माइनस 3, ये होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम अपन बाई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बाई माइनस बाई बार, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन 5 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जो है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू अपने पास आएगी 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा अपने पास। सेकेंड अपने पास 0, थर्ड अपने पास आएगा 0,
फोर्थ अपने पास आएगा 5 माइनस 3 2 4 2 माइनस 3 1 देन 4 4 1 0 1 एंड 4 ये अपने पास x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार निकल जाएगा। उसके बाद अपन m आइडेंटिफाई करेंगे और देन c कोफिशिएंट अपन आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह जो है अपन लीनियर रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स अपन आइडेंटिफाई करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक सम जो है ml को जो है कुछ जो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स है उस एल्गोरिथम्स को अपन जो है कंपाइलर के थ्रू भी जो है लर्न कर सकते हैं किस तरह डेटा को ये ट्रेन करता है, टेस्टिंग कैसे करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज की जाती हैं। जैसे मोस्टली जो है यूज की जाती है नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, एसके लर्न। इनके थ्रू जो है अपन जो डेटा को अपन को ट्रेन करना है, टेस्टिंग करना है, वो मॉडल्स अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए कुछ ऑनलाइन जो है कंपाइलर दिए हुए हैं। बेसिकली जो है कंपाइलर इसके लिए दे रखा है, पाईशार्म है, स्पाइडर है आपके पास, एमएल पाइथन्स के लिए दे रखा है। बेसिकली पाइथन्स के ऊपर पाइथन्स की भी सेम लाइब्रेरी अपन इसके अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली और गूगल कॉलैब है, कैगल्स है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स है उनको अपन क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस दी हुई हैं, ऑनलाइन कंपाइलर दिए हुए हैं। पाइथन्स के अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसके लिए यूज किया जाता है एनाकोंडा। एनाकोंडा के अंदर ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो वहाँ पे अपन एग्जीक्यूट एडिटर्स आपको दिए होंगे। वहाँ पे जो है KNN के थ्रू किस तरह मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है, के मीन्स किस तरह डेटा को टेस्टिंग कर रहा है, तो वो मॉडल्स यहाँ पे अपन जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे जो है NPTELs के भी आपको जो है लेक्चर्स दिए होंगे जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के जो है एप्लीकेशंस दी हुई हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस किस तरह वर्क कर रही हैं, KNN किस तरह वर्क कर रहा है, तो ये NPTELs के कोर्सेरा के या स्वयं के यहाँ पे भी कोर्सेस आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन वीडियोस हैं ML के की मशीन लर्निंग की जो है जो करंटली है वो कहाँ वर्क कर रहा है, किस एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहा है, डेटा साइंस के अंदर अपन कैसे यूज कर रहे हैं, AI के अंदर कैसे मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है ऑनलाइन जो है वीडियोस दिए हुए हैं कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा अपने यूज कर रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज में, मेडिकल्स में, चाप, कोई भी मॉडल्स यूज करोगे उसके अंदर जो है बेसिकली मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशन है उनको क्या करते हैं अपन यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। थैंक यू स्टूडेंट।